हाय हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल माय डियर चिल्ड्रन। और आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ व्हाई आई लाइक द हॉस्पिटल, द पोएम फ्रॉम द बुक रैप्सोडी। ओके, तो वो हम डिस्कस करेंगे आज, व्हाई आई लाइक द हॉस्पिटल के एमसीक्यू क्वेश्चंस। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको जाके देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। मैंने हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है और अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज बिकॉज इट इज ऑल राइट टू बी इन अ बैड मूड देयर। टू विच प्लेस इज द स्पीकर रेफरिंग टू बाय देयर? देयर वर्ड से किसको रेफर किया जा रहा है? गैरेज, बी हॉस्पिटल, सी एलिवेटर, डी प्रिजन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी हॉस्पिटल। ओके, next we come to question number 2. Who are the other customers referred to by the speaker? Other customers किसके बारे में कहा जा रहा है? Other patients, those parking their cars, option B. Option number C is speakers, clients. Option number D, the families of the patient. So the correct option is option number B. Yes, option number A. Sorry, option number A, that is other patients. Okay, question number 3 पे आते हैं. Why was the speaker slouching along in the garage? क्यों slouching along कर रहे थे? ओके, ऑप्शन नंबर ए, ही वॉज फीलिंग स्लीपी, ही वॉज अंडर द स्पेल ऑफ स्लीपिंग पिल्स, ही वॉज सिक और नन ऑफ द एबव। सो द करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ देख के लग रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ही वॉज सिक. Let's move to the next question. Question number 4. Which figure of speech is used in the phrase like a prison wall? Like a prison wall, इसमें कौन सा figure of speech यूज़ किया गया है? Metaphor, metonymy, allusion और simile. So जब हम direct comparison किसी चीज़ से करते हैं तो हम यूज़ करते हैं simile. Okay. Question number 5 is the speaker is referring to the closed big doors of which of the following? The hospital, प्रिजन, गैरेज और नन ऑफ द एवर. तो हम देखते हैं कि क्लोज बीच डोर किसको कहा गया है? हॉस्पिटल के डोर्स को. ओके, नेक्स्ट हम आते हैं. द यूज ऑफ व्हाट कस्टमर्स इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम इज सजेस्टिव of which of the following? The word customers क्या जिसको suggest किया कर रहा है? Is satire on the people lacking courage to admit their disease, a satire on the loneliness suffered by the patients, a satire on the present day healthcare institutions, or all of the above? So the correct answer is a satire on the present healthcare institution. This is the correct answer. Okay, question number 7 पे आते हैं. What sort of feeling are aroused in the speaker on seeing the patients in the कैंसर वार्ड? कैंसर वार्ड के पेशेंट्स को देख के किस तरह का फीलिंग आता है स्पीकर में? पिटी एंड सैडनेस, पिटी एंड अनोयंस, फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर, ऑल ऑफ द एबव. So the correct answer is pity and sadness. Okay, next question पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. Why was the girl with the shunt described as bald? जिस गर्ल को स्टंट लगा था, शंट. ओके, why was she described as bald? ठीक है, bald means a person who does not have hair on his head, his or her head. ओके, तो क्यों बाल डिस्क्राइब किया था? ऑप्शन ए, ड्यू टू एन इंजुरी ऑन हर हेड, ऑप्शन बी, ड्यू टू कीमोथेरेपी, सी, ड्यू टू एन इन्फेक्शन ऑन हर स्कार्फ, और नन ऑफ द एबव. सो द करेक्ट आंसर इज ड्यू टू कीमोथेरेपी. ठीक है, नेक्स्ट पे पढ़ बढ़ते हैं. Who is referred to as crone walking with an ivy pole? Okay, options are an old man, option B, a man suffering from a fatal disease, option C, an old woman, and option D, none of the above. So the correct answer is option C, an old woman. Question number 10 is, which of the following is not true about the speaker? Okay, he does not like the smell of antiseptic, he does not like to visit a hospital, he does not like the air conditioner set on high throughout the night, none of the above. So the correct option is he does not like to visit a hospital. ठीक है, ये not true है, this is incorrect because हमारा poem ही है why I like to visit the hospital. Okay,
Question number 11 is which of the following imagery is used in the line I don't like the smell of antiseptic. Okay, कौन सा imagery use किया गया है? तो ऑप्शंस आर विजुअल इमेजरी, ऑडिटरी इमेजरी, सी टैक्टाइल इमेजरी, ऑप्शन डी ऑल्फैक्टरी इमेजरी. स्मेल इज कनेक्टेड टू ऑल्फैक्शन. ठीक है, स्मेल ऑल्फैक्टरी इमेजरी होगा. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑल्फैक्टरी इमेजरी बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट स्मेल. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं. व्हाट इज रिफर्ड टू एज द कॉम्प्लेक्स स्कोरिंग सिस्टम इन्वेंटेड बाय द पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल. ओके, कॉम्प्लेक्स स्कोरिंग सिस्टम से क्या समझते हैं हम? ए, टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन दे एक्टेड फुलिशली एंड व्हेन दे एक्टेड वॉइसली. ओके, ऑप्शन बी, टू काउंट द डेज इन अ year spent in a hospital. Option C, to count the number of days they are going to leave. Option D, to count the number of days they visited a hospital. So the correct answer is to count the number of times when they acted foolishly and when they acted wisely. Okay, चलिए next question पे. Question number 13 is what does the visit to a hospital allow the patients to do? To live and act in a crowd, to be with themselves, to be surrounded by patients, none of the above. तो क्या allow करता है? To be with themselves. तो correct answer is to be with themselves. Okay. Question number 14 is which figure of speech is used in the line each sick person is standing in the middle of the field like a tree. कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज़ किया गया? तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी हमारा डायरेक्ट कंपैरिजन है क्योंकि हम यहाँ लाइक वर्ड का यूज़ कर रहे हैं. तो जब भी हमारा डायरेक्ट कंपैरिजन होता है किसी भी चीज़ से तो हम क्या कौन सा फिगर स्पीच यूज़ करते हैं? सिमिली. ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट डज द फ्रेज द लॉन्ग पीरियड ऑफ वेटिंग सजेस्ट? इस फेज से क्या सजेस्ट होता है? द टाइम स्पेंट इन वेटिंग फॉर देयर टर्न टू सी अ डॉक्टर, द क्यू आउटसाइड द एग्जामिनेशन रूम इन द हॉस्पिटल, द कंटिन्यूस वेट ऑफ द पेशेंट्स फॉर द नियर एंड डियर वंस और नन ऑफ द एबव. तो लॉन्ग पीरियड ऑफ वेटिंग सिग्निफाइज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, द कंटिन्यूस वेट ऑफ द पेशेंट्स फॉर द नियर एंड डियर वंस. गॉट इट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 इज which of the following is not correct about the terminally ill patient wearing lime green gown? क्या बात जो है इस पेशेंट के बारे में इनकरेक्ट है? ओके, which of the following is not correct, which of the following is incorrect? Okay, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए इज he was pretending to be strong. ऑप्शन नंबर बी, he was not shouting at the doctor. Option number C, he was crying inconsolably. And option number D, he was hunched over in a chair. So ये जो तीनों लास्ट के जो ऑप्शन है वो सारी चीज़ें वो कर रहा था, बट ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट. ही वॉज प्रिटेंडिंग टू बी स्ट्रॉन्ग ऐसा नहीं था. ही वॉज नॉट प्रिटेंडिंग टू बी स्ट्रॉन्ग. अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश वो नहीं कर रहा था. ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं. व्हाट वाज द मैन ट्राइंग टू डू बाय सॉबिंग विदाउट एनी सेम? ठीक है, बिना किसी शर्म के वो इंसान जो रो रहा था वो क्या दिखाना चाह रहा था? ओके, टू शो हिज मेंटल हेल्थ, टू शो हिज ग्रीफ, टू पोर हिज हार्ट आउट, टू शो हिज हेल्पलेसनेस एंड एंगर एंड ऑल ऑफ द एबव. एक्चुअली इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है बिकॉज कई टीचर्स ऐसा बोलेंगे कि ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए, बट जहाँ तक आप समझो मेरे हिसाब से वो अपनी हेल्पलेसनेस और अपने एंगर को दिखाने की कोशिश कर रहा था. Okay, so the correct option should be option number C, to pour his heart out to show his helplessness and anger. Okay, question number 18 पे आते हैं. which figure of speech is used in the following line? कौन सा figure of speech यहाँ यूज किया गया है? he was holding his own hand in sympathy. ठीक है, होल्डिंग इज ओन हैंड इन सिंपैथी से कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया? ओके, मेटाफोर, एलिट्रेशन, सिमिले और मेटोनिमी. यहाँ आप देखिए ही एच, होल्डिंग एच, हिज एच, हैंड एच, सब में एच साउंड स्टार्ट हो रहा है. ओके, एच यूज हो रहा है. सो दैट्स वाई जो है हम इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एलिट्रेशन. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे. What does the speaker want to convey by saying that the patient was holding his own hand in sympathy?
ठीक है, स्पीकर क्या बताना चाहते हैं इस लाइन से कि पेशेंट अपने ओन हैंड को अपने खुद के हाथ को सिंपैथी में पकड़ा हुआ था। द पेशेंट वॉज ऑल एंड ऑन विथ नो बडी टू टेक केयर ऑफ हिम। द पेशेंट वॉज फुल ऑफ ग्रीफ। द पेशेंट वॉज ट्राइंग टू हेल्प हिमसेल्फ। नन ऑफ द एबव। सो द करेक्ट ऑप्शन और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है यहाँ पे वो क्या है? द पेशेंट वॉज ऑल अलोन विथ नो बडी टू टेक केयर ऑफ हिम। सो वी विल टेक ऑप्शन नंबर ए। ओके, 10th क्वेश्चन पे आते हैं। द पोएम वाई आई लाइक द हॉस्पिटल इज सटायर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। किस पे ये सटायर है? किस पे सटायर है ये पोएम? ओके, ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 10. Okay, so the options are the lack of respect for terminally ill patients. Option B, treatment given to the patients in a hospital. Option C, the lack of empathy in people for the patients. Okay, the lack of desire to live in the patients. So the correct answer is option number C, the lack of empathy in the people for the patients. एक और क्वेश्चन लेफ्ट है उसको. The words "but if you looked you could see" are addressed by the speaker to whom? The terminally ill patients, the doctors, the relative of the patients, the readers. किसको कहा गया है? ठीक है, so the correct answer is the readers. ठीक है, with this we come to the end of this session. और इसी तरह के क्वेश्चंस मैं और डिस्कस करूँगी, MCQ क्वेश्चंस ऑफ दिस बुक एंड ऑल्सो ऑफ प्रिज्म, एंड इसके साथ साथ लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी मैं जल्द आपके लिए लेके आ रही हूँ, दोनों चैप्टर्स के. अभिसारा का भी मैं इसके बाद जस्ट अपलोड करने वाली हूँ, और वाई आई लाइक द हॉस्पिटल की लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी मैं जस्ट बहुत ही जल्द अपलोड करूँगी. वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट में लिखिए कि और आप क्या क्या मुझसे चाहते हैं, मैं कौन कौन सी वीडियो आपके लिए लेके आऊँ, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करेगा बच्चों. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.